Good evening, everyone. Welcome to the show presented by Kala in association with Let's Talk. Let's Talk are a mental health care startup company creating safe spaces through shared group journeys. Now, what's Kala? Kala is a movement, not just a festival or awards or even the show. We founded Kala with a vision to ignite a lasting love for literature and arts and make this a part of community life. Our mission is to be that bridge between the creators, that is, the writers and the artists, and communities. And obviously, technology plays a very important role in this outreach. Now, to achieve the objectives, we have curated several initiatives. I'll just very quickly run through a few of those initiatives, or almost all of those initiatives. We have a Kala Literature Club based in Gurgaon, which meets up once in a month. We started Kala Literature Awards 2 years back. This year, it is the third edition of the awards. And we have so far showcased more than 200 authors through these awards. This year itself, we received about 140 entries from 120 authors, and the winning and the shortlisted authors will be honored during the Kala Literature Festival 2026. That is going to be the third edition of the festival, to be organized in Delhi NCR on 31st January and 1st February 2026. We have announced theme-based anthologies of short stories. We have reached out to more than 750 young adults in schools and colleges through talks and workshops on creative writing. And we have showcased the life and works of more than 60 authors and artists through the show. Yes, that is right, the show for which you all are here this evening. Now, let me introduce to you the moderator, Vardhan Tharkar. Welcome to the show, Vardhan. Namaste. Namaste. Vardhan quit his corporate job and now pursues his diverse passions, that is, fitness and creativity. He instructed me that I have to keep his introduction short and crisp. So I could not have been crisper than this or shorter than this. Thank you. So welcome once again to the show, Vardhan. Thank you. To the guest of the evening, Ishita Singh. Welcome to the show, Ishita. A quick introduction of Ishita. Ishita Singh is an award-winning author, motivational speaker, and social change advocate based in Jaipur with roots in the spiritual city of Varanasi. An MBA in finance, she began her professional journey with the State Bank of India in 2009, yet her true calling lay in words, wisdom, and empowering lives. Writing has been part of her life since childhood. Her very first Hindi story was published in a newspaper when she was just in 5th grade. Carrying forward the literary legacy of her grandfather, the celebrated writer Dr. Shiv Prasad Singh, she has authored several impactful works, including Happens Like a Dream, Redefining Success for Empowered Living,
The Art of Effective Parenting, Love Connection, and the poetry collection Sugar and Brownies. Winner of the Global Digi Awards, Special Recognition category, and the Luminary Prize of India Authors Academy, Ishita has also spoken at prestigious forums like the Delhi World Book Fair 2025. Alongside writing, she is an intuitive tarot reader, Isha Foundation volunteer, and a voice for women's empowerment. Through her books, speeches, and initiatives, Ishita inspires people to embrace courage, compassion, and a life aligned with higher purpose. Her latest, Devi, Plains of Empowerment, published in 2025, is more than a book. It is also a movement. Conceptualized by author Ishita Singh, this anthology brings together the voices of powerful women writers to celebrate the indomitable spirit of womanhood. So that's Ishita Singh for you. Before I hand you over to Ishita and Vardhan, let me also tell you that we are recording this episode. The recording will be shared on my YouTube channel, Sanjay Chandra 5376. So, ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy. The show presented by Kala in association with our wellness partner, Let's Talk. Ishita Singh in conversation with Vardhan Dharkar. Over to you, Ishita. Over to you, Vardhan. Thank you so much, Sanjay ji. Thank you, Sanjay, for your crisp introduction. And namaste to all our viewers in Bharat and outside of Bharat. Welcome to the show, and welcome to you, Ishita, also to our today's edition of the show. It's indeed a privilege to have you over here, and I'm sure that we are going to have a very interesting conversation. So let's begin. Yes, I'm also looking forward for a wonderful interactive session. Yes, let's begin. Thanks. So I was going through your website and I found very interesting quotes over there. And one of the quote I found it more interesting, and I thought that I will start our conversation with that quote and your impression or your understanding of that quote. And that quote is, "Each book is a doorway to endless possibilities." I found this very impressive and very empowering. So maybe if you can just share your thoughts on this. Okay. हर किताब एक नई दुनिया ही होती है. This is what I wanted to share with this quote. अगर किसी को एक नई दुनिया में जाना है, किसी का मन भर गया इस दुनिया से, या फिर थोड़ा चेंज चाहिए क्योंकि इतना स्ट्रेस है, तो फिर वो किताबों की दुनिया में खो सकते हैं. फॉर मी बुक्स वर लाइक मोर, मतलब दोस्त. बचपन से ही मेरी माँ ने कहा था कि किताबें हमारी दोस्त होती हैं. अगर किसी को दोस्त बनाना है तो किताबों को बनाओ, वो सेफ रहता है, किताबें कभी हमें धोखा नहीं देंगी. और जब मैंने किताबों की दुनिया में झांक के देखा तो मैंने देखा इट्स मोर देन फ्रेंड. अगर हमें बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है तो हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किताबों का सहारा ले सकते हैं. दिस इज व्हाट आई डिस्कवर्ड इवन व्हेन आई वाज अ स्मॉल गर्ल. तो बचपन में ही मैंने हैरी पॉटर सीरीज आ गई थी, हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी, और बच्चों की और भी बहुत सारी कहानियां थी वो पढ़ी, एलिस इन वंडरलैंड. तो बहुत मजा आता था बचपन में ही ये सारी कहानी की किताब. तो ऐसा लगता था किताब पढ़ रहे हैं उससे बाहर ही ना निकले. खाना पीना सब कुछ मेरा छूट जाता था जब किताबों के पन्नों में मैं जाती थी. तो ये कोट उसी सिचुएशन से इंस्पायर्ड है मेरे बचपन से, कि जब मैं पूरे स्कूल, किताबें और वो सारी जो बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है उससे अगर कहीं दूर जाना चाहती थी अपनी एक एलिस इन वंडरलैंड वाली दुनिया में या फिर हैरी पॉटर वाली दुनिया में, किसी भी दूसरी दुनिया में, तो किताबों के सहारे चुपके से घुस जाओ उस दुनिया में. तो इस कोट के थ्रू मैंने यही मैसेज साझा करने की कोशिश की है. Okay. Very interesting. And I completely agree with you. Is that books are your true friends, and that is where actually, if you make them your friends, your life will be that much more enjoyable and happy. Right. So, as Sanjay mentioned, your grandfather was also a very successful and award-winning author. So, how much help and influence he had on your writing? Yes.
इनफैक्ट ही इज माय रोल मॉडल। और बचपन में जब मैं उन्हें देखती थी आई यूज टू गेट इंस्पायर्ड, क्योंकि वो नॉलेजेबल थे। और मैं बहुत छोटी थी उस समय और देखती थी बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, दे आर गिविंग हिम रिस्पेक्ट, रिगार्ड। तो मुझे लगता था हाँ, मतलब मुझे भी इम्पोर्टेंस फील होता था। और सारे गेस्ट्स के बीच में अगर वो मुझे बुलाते थे अपने पास और अपनी गोदी में बिठा के फोटो खिंचाते, तो मुझे लगता था यस, आई एम ऑल्सो गेटिंग सो मच रिकॉग्निशन, इतना प्यार मिल रहा है, सब लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं। सो इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है क्योंकि मेरे दादाजी राइटर हैं, तो मुझे भी राइटर बनना है। तो बचपन से ही ये सारी चीजें मेरे अंदर इंग्रेन होती चली गई, यस मैं राइटर बनूंगी। और बचपन में मेरी माँ मुझे बताती थी, व्हेन आई वाज अ स्मॉल गर्ल, 3-4 साल की बच्ची थी मैं, तो भी फ्लावर्स को देख के या तितलियों को देख के कुछ पंक्तियां बना लेती थी। सो जब मैं बड़ी हुई तो कुछ कुछ लिखना शुरू करती थी। मेरे दादाजी तो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे ही। उनके पास में बैठती थी, बहुत सारी चीजों को सुनती थी, बहुत सारी चीजों को जानने की कोशिश करती थी, उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जो फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी थी उसको भी मैं इंजॉय करती थी, और साथ में जो मेरे दादाजी हैं उनसे जो मुझे प्यार मिल रहा है, बाकी लोग जो आके मुझे प्यार कर रहे हैं, एक जो रिकॉग्निशन था, उसको लेके मेरा बचपन में मन बहुत ज्यादा उत्साहित रहता था। तो ही वॉज रियली ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी हर चीज के बारे में। मैं भी सीखने की कोशिश करती थी, जानने की कोशिश करती थी, और मेरा भी सपना था कि बड़े होके मैं राइटर जरूर बनूंगी, एंड ही वॉज माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। Okay. So when you started writing and your work was published, did it ever put pressure on you that you are granddaughter of such a big artist and your work will get compared with his work? मुझे पर्सनली कभी ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ स्मॉल, मेरा मन था कि मैं ज़रूर राइटर बनूंगी। और बहुत सारी रचनाओं को मतलब उनकी हेल्प से मैंने लिखने की कोशिश की। और Yeah. So we were discussing whether having a grandfather like him, whether it put any pressure on you. यस, हाँ, मैं बता रही थी कि मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया। बचपन में भी जो मैंने कहानियां लिखी थी वो खेल खेल में लिखी थी। वो मुझे, मेरे दादाजी मुझे प्रोत्साहित करते थे। मुझे लिखना अच्छा लगता था इसलिए लिखी थी। फिर जब मैं बड़ी होती चली गई तो पढ़ाई का प्रेशर, करियर का प्रेशर, कहीं ना कहीं थोड़ा एक डिस्टेंस बन गया लिखने से। उसके बाद 2020 में कोरोना के टाइम पे मैंने फिर से लिखना शुरू किया। तो उस समय जब लिखना शुरू किया तो फिर से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर था, करियर का प्रेशर। उस समय कोरोना में काफी ज्यादा ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी जिससे मन बहुत विचलित था। तो उस समय मैंने फिर से लिखना शुरू किया। तो लिखना कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहा है, कि इस स्ट्रेस भरी दुनिया से अगर थोड़ा सा सुकून अगर खोजना है तो वो शब्दों की दुनिया में मिल सकता है। Okay, okay, that's very interesting. And really, in a way, I will put it is that you have used your grandfather's knowledge and his skills to your advantage. So, coming to the next question is that as you, Sanjay mentioned that you started writing when you were in school. I think when you were in grade 5, you started writing, and that's when your first work was published. So I would have thought that by now you would have got at least 25 plus books authored by you. Why did you take a break? अ, बीच में वही पढ़ाई लिखाई और उन सारी चीजों की वजह से ब्रेक, हाँ कह सकते हैं कि ब्रेक लिया था बीच में। तो मुझे डर भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस लेखन जगत से दूर होती जा रही हूँ। बट बीच में एक ऐसा आया था, 12th पास करने के बाद जब करियर का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तब ऐसा समय आया था जब मुझे लगा था कि शायद लेखन मेरे से छूटता चला जा रहा है। बचपन से ही मेरा सपना रहा कि मुझे राइटर जरूर बनना है। और उसके बाद 12th के बाद ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई, जॉब करनी है, सेटल होना है, ये सारी चीजें, कि उसके बाद ये सारी चीजें छूटती चली गई। फिर 2020 में कोरोना के टाइम पे मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया तो अच्छा लगा। उसके बाद 2021 में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था। और मुझे अभी हाँ, भी याद है, मैं बेड रिडन थी, मुझे लग रहा था कि क्या होगा, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि कोरोना के उस दौर में बहुत अच्छी खबरें नहीं सुनने को मिल रही थी, मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे जाने से पहले एक किताब लिख के जाना है। तो उस समय हम्म, मैं बेड रिडन थी और मैंने अपनी डेब्यू बुक स्टार्ट की, हैपेंस लाइक अ ड्रीम।
और वो किताब मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट 3 हफ्ते में कंप्लीट की, उसके बाद उसकी एडिटिंग करनी शुरू की, 3 महीने 4 महीने के प्रयास के बाद वो किताब बन के तैयार हुई। और उस किताब को स्टार्ट करने के पीछे यही था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे जाने से पहले एक पुस्तक लिख के जाना है, लेखक बनने का सपना पूरा करना है। Okay, okay. So in a way, Corona was a blessing in disguise. यस, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि एक प्रोकास्टिनेशन चलता रहता है कि जब हमें परफेक्ट कहानी मिलेगी तब लिखना शुरू करेंगे। लेकिन उस समय मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे अंदर परफेक्शन वाली चीज नहीं थी। मुझे था कि अभी करंट मैं जो भी उस समय जिस सिचुएशन से गो थ्रू कर रही थी उसको आधार बना के मैंने किताब लिखी। और उस समय मैं अंदर से इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, सिर्फ ये थॉट मेरे दिमाग में कि हो सकता है अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि तबीयत इतनी सीवियर खराब हो गई थी और कोरोना के टाइम में इस तरह के न्यूज सुनने को मिल रहे थे जो कि प्लेजेंट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। और मेरी कहानी की नायिका जो थी वो भी डिप्रेशन में जाती है। और इसीलिए मेरी जो फर्स्ट बुक है, डेब्यू बुक हैपेंस लाइक अ ड्रीम, उसका थीम सेल्फ लव है। जिस चीज की मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी वही मैंने अपने उसी को आधार बना के मैंने किताब लिखनी शुरू की थी, अपनी डेब्यू बुक। Okay. In fact, that was going to be my next question is that why did you select this topic of self-love to be your debut book? That answers the question. So maybe we can talk about that book itself. If you can just very briefly describe what that book is all about. यस, मेरी किताब हैपेंस लाइक अ ड्रीम इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ अ गर्ल जो कि करियर ओरिएंटेड है। लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है, इवन सुसाइड अटेम्प्ट भी करती है। लेकिन वहां से वो यू टर्न लेती है। उसको सेल्फ लव मतलब पता चलता है कि अंदर अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस सेल्फ लव का मतलब होता है कि जब आप अपने साथ रहते हैं, अपना साथ नहीं छोड़ते हैं, आप हार नहीं मानते। तो जिस करेज, जिस हिम्मत की मुझे जरूरत थी उस डिप्रेशन वाले टाइम में, उसी को आधार बना के, उसी को एक दूसरा रूप दे के मैंने वो कहानी लिखनी शुरू की, जिसमें नायिका भले ही एक लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जब वो डिप्रेशन में चली जाती है, बट वो बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को उस डिप्रेशन से बाहर निकालती है और अपने करियर में बहुत ही अच्छा माइलस्टोन अचीव करती है। तो Okay. ये So, अ, sorry, go ahead. तो बहुत सारे लोगों ने जब बाद में वो किताब पढ़ी तो वो उससे रेजोनेट कर पाए कि अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स और फीडबैक ये आया कि उन्हें लगता है कि मैंने उनके लाइफ पे ये किताब लिखी हुई है। तो काफी Hmm. सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाए उस थीम से। Okay. So what was the best compliment that you received for that book? द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच आई रिसीव्ड, आई गॉट अ मेल, एनोनिमस मेल फ्रॉम अ गर्ल, जिसमें लिखा था कि वो बिल्कुल उन्हीं की लाइफ पे आधारित लग रही है और वो ये चाहती है कि मैं उस किताब का सीक्वल निकालूं, और वो मुझे अपने लाइफ की और भी घटनाएं बताएंगी ताकि मैं उसका सीक्वल निकाल सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतने ज्यादा रेजोनेट वो कर पाई इस किताब से। Mm-hmm. Okay. So, taking forward from that book, your next book, Redefining Success for Empowered Living. How did you think about this book and a book which talks about balancing body, mind, and soul? So, I would have thought that this is a book somebody who is in 50s or 60s he will write, but someone like you at such a young age. रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग, अगेन ये किताब हैपेंस लाइक अ ड्रीम से कनेक्टेड है। क्योंकि Hmm. जब हम सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत भी हुई। जैसे टैरो कार्ड रीडर मैं हूं तो बहुत सारे सेशंस भी होते रहते हैं और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनसे इंटरेक्शन होता है। तो मैंने Hmm. ये ऑब्जर्व किया कि सेल्फ लव का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अपना ख्याल रखना, बहुत सारी चीजों के पीछे बच्चे भागते रहते हैं, लेकिन उसमें अपना ख्याल उन्हें रखना चाहिए, इस चीज को कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज कर देते हैं। वो भले ही उनकी फिजिकल हेल्थ का ख्याल हो, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हर चीज को नजरअंदाज करते हैं। तो यही कहीं ना कहीं मेरी प्रेरणा बनी अपनी दूसरी बुक रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग के लिए, जिसमें यह बताया गया है कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सांसारिक मायने होते हैं सक्सेस के, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स टारगेट्स तभी अचीव कर सकते हैं जब अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं।
अपने अंदर के वेरियस एस्पेक्ट्स को एक लेवल पे ला पा रहे हैं। अगर हम अपने बेसिक जो एक फिजिकल हेल्थ है, या फिर आजकल के समय में आफ्टर कोरोना मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अगर इन सारी बेसिक चीजों को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे गोल्स हैं या जो भी हमारी सक्सेस की डेफिनेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये थीम चुना। और ईशा योगा सेंटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ पहले बहुत खराब रहती थी। उसके बाद मैंने योगा करना शुरू किया और योगा करने से मुझे काफी ज्यादा फायदा महसूस हुआ। और वहां पे सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि खान पान में क्या चेंजेस होने चाहिए ये भी बताते हैं। तो खान पान में चेंजेस लाके योगा करके मुझे खुद अपने हेल्थ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस फील हुए, मुझे लगा ये सारी चीजें जरूर मुझे किताब के माध्यम से यंगस्टर्स तक पहुंचानी चाहिए, रीडर्स तक पहुंचानी चाहिए, ताकि उनको ये फील हो कि ट्रू सेल्फ लव मतलब अपने अंदर संतुलन पैदा करना होता है। Okay, okay. I think very appropriate and very correct what you have described is that if you want to be successful in this world, then also you need to have a proper balance in your life. Very good. Yes. No, so what I was saying is that now that you have come out with two books, the first book talks about the self-love, second book talks about the balance between body, mind, and soul. Are you thinking about writing a third book which will take forward this theme? यस, डेफिनेटली। बिल्कुल मेरे मन में है कि रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग का दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने अपनी फिजिकल बॉडी में कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सब के बारे में लिखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक टॉपिक को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो एक किताब लिखी जा सकती है। तो जरूर मैं इसके आगे भी लिखना चाहूंगी जिसमें इन सारी चीजों को और डिटेल में बताया जा सके। One question I wanted to ask you, since you have written the book on self-love, whether in India people tend to neglect self-love, and if somebody actually is thinking about self-love, people think he is egoist or he is arrogant? इनफैक्ट सर बहुत सारे लोगों को तो मुझे लगता है पता ही नहीं है सेल्फ लव मतलब क्या होता है। उन्हें लगता है शायद सेल्फ इंडल्जेंस सेल्फ लव है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ लव। सेल्फ लव होता है जब हम पॉजिटिव वे में अपने आप को नर्चर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ जाती है। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब जब हम लोग माइंडलेसली सिर्फ वो काम करते हैं जो हमें करने में अच्छा लग रहा है दैट प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स देखना इज जस्ट लाइक सेल्फ इंडल्जेंस। बट अगर हम योगा कर रहे हैं सुबह उठ के, हो सकता है उस समय वो चीज हमें पेनफुल लगे, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। सो यस, आई थिंक कि इंडिया में इस चीज को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। Okay, okay, perfect. So now let's come to your book of poems, and that's something which, in fact, I always feel that writing a poem is one of the most beautiful thing, and the words that you use over there, they convey 10 times more meaning than maybe a book will convey. So how did you think about writing poems, and what was your inspiration? मेरी जो पोयम की बुक थी शुगर एंड ब्राउनीज, वो मैंने अपने बेटे के जन्मदिन पे उसको गिफ्ट में देने के लिए लिखने की सोची। जो विचार आया वो इससे प्रभावित था मेरे बेटे के जन्मदिन से। और Mhm. उसमें मेरा बेटा जब छोटा था, इनफैक्ट मैंने अपने बचपन से शुरू किया है। मैंने अपने बचपन के बारे में लिखा है और अपने बेटे के बचपन के बारे में लिखा है। दोनों के बचपन के बारे में लिखा है। तो कहीं ना कहीं मेरा बचपन, मेरे बेटे का बचपन, दोनों ही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये Mhm. शुगर एंड ब्राउनीज जो मेरी पोएट्री की बुक है वो लिखने के लिए। और इतना ज्यादा कोई भी व्यक्ति अपने बचपन से अटैच होता है, अपने बच्चे से अटैच होता है, कि वो शब्द और भावनाएं ऑटोमेटिक, मतलब इट वाज वेरी इजी फॉर मी। इवन दो Mhm. पोयम लिखना और शब्दों का चयन थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट ये ऐसी मेरे बेटे के बारे में था तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ही सहज था। Okay. So maybe if you can recite one poem for all our viewers, अ, if you अभी तो remember. नहीं, बट फिर कभी जरूर। Perfect. Okay, no problem. So coming to your next book about the book on the parenting. So you have written that book. So if you can talk about that book, because that again is something which is very important for
all the parents and going to be parents. यस यस। आजकल के समय में मैंने नोटिस किया है, स्पेशली जब से ये एकल परिवार बढ़े, न्यूक्लियर फैमिलीज, पहले जॉइंट फैमिलीज में तो बच्चे कैसे बड़े हो जाते थे पता भी नहीं चलता था, इट वाज नॉट अ बिग डील। बट नाउ इट इज अ बिग डील, स्पेशली माय ओन पेरेंटिंग जर्नी हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड। मुझे खुद को मतलब बहुत सारी चीजें, और न्यूक्लियर फैमिली में कुछ पता भी नहीं होता उतना, और स्कूल का बर्डन, बच्चे का, आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं आजकल के समय में, स्पेशली बच्चों का फिजिकल हेल्थ, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें भी बढ़ रही हैं। तो मैं कहूंगी आजकल पेरेंटिंग थोड़ी सी ज्यादा स्कैरी हो गई है, स्कैरी फॉर मी। इसीलिए मैंने ये थीम चुना कि आर्ट ऑफ इफेक्टिव पेरेंटिंग। मैंने खुद कोर्स किया पेरेंटिंग का, ताकि मैं बच्चों की साइकोलॉजी थोड़ी और समझ सकूं, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर एक पुस्तक लिखनी चाहिए, ताकि और जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो सिमिलर सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल सके इस चीज की। तो कहीं ना कहीं मेरी खुद की पेरेंटिंग जर्नी, और मेरी पेरेंटिंग जर्नी में जो मैंने समस्याएं फेस की, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बनी इस चीज का। Okay, okay. So you must have received lot of comments and feedback on this. So maybe if you can share some feedback. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, इनफैक्ट पुस्तक लिखने से पहले काफी लोगों से मैंने 1-to-1 इंटरव्यू किया था, उनकी खुद की पेरेंटिंग जर्नी के बारे में जानने के लिए। अपने काफी सारे दोस्तों, रिश्तेदारों से बात की थी कि वो क्या गो थ्रू कर रहे हैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी में, उनकी पेरेंटिंग जर्नी के क्या अनुभव रहे हैं, उनके क्या सजेशंस हैं, उनके क्या फीडबैक हैं। और बाद में भी पुस्तक पढ़ने के बाद भी उन लोगों ने काफी अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर किए, कि उन्हें पुस्तक पढ़ के काफी सारी चीजें पता चली, और काफी सारी चीजें वो, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से किताब लिखी थी, वो दूसरे पढ़ के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसको यूजफुल समझ रहे हैं, यूजफुल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये काफी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था। Okay. So now let's come to your latest book, Devi, Flames of Empowerment. So maybe if you can talk about that book, how did you think about this theme, and how did you think about having so many authors, women writers collaborating with you on this particular theme? यस देवी मेरी लेटेस्ट बुक है, और लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में ही कुछ घटनाएं हुई थी देश में जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं थी। तो न्यूज़ में जब उनके बारे में सुना तो मन थोड़ा सा अशांत था। उसके बाद फिर मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा कि एक विमेन एम्पावरमेंट की के ऊपर एक बुक लिखनी चाहिए। तो देवी का थीम मेरे ध्यान में आया कि हाँ, अ, देवी कहीं ना कहीं हर स्त्री के अंदर होता है, देवी एसेंस, बट बहुत सारी महिलाएं उसको रियलाइज नहीं कर पाती हैं। और हमारे हिस्ट्री में भी बहुत सारी महिलाएं रही हैं जिनके लाइफ में एडवर्स सिचुएशन आई हैं, विषम परिस्थिति आई हैं, बट उन्होंने अपने जील से उसको गो थ्रू कर लिया, ओवरकम कर लिया। तो कहीं ना कहीं अभी ये मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर देश में होती हैं जो कि बाकी महिलाओं का कॉन्फिडेंस हिला के रख देती हैं, तो कुछ ऐसा भी इंस्पिरेशन होना चाहिए जिससे महिलाओं को ये प्रेरणा मिले, संबल मिले कि नहीं, अगर ऐसी घटनाएं हैं तो ऐसी घटनाएं भी इतिहास में हो चुकी हैं, जिसमें महिलाओं ने अपने अंदर काम करके अपने आप को एम्पावर किया और समाज में सकारात्मक चेंजेस लाई। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी को ऑथर्स के साथ संपर्क किया, बहुत सारी महिला लेखिकाओं के साथ संपर्क किया, उनसे बात की, और मुझे लगा सिर्फ अकेले मैं अगर ये किताब लिखूंगी तो शायद उतना उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल तब रहेगा जब हम लोग कोलैबोरेशन में ये करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बुक का ये भी थीम था कि यूनिटी होनी चाहिए। और जब शक्ति आपस में मिलती है, बहुत सारी महिलाएं आपस में जब मिलेंगी, किसी ऐसी चीज पे काम करेंगी, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव आएगा ही समाज में। तो इसीलिए बहुत सारी महिलाओं के साथ, महिला लेखिकाओं के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, और बहुत सारी इतिहास की उन सारी महिलाओं के बारे में लिखा जिन्होंने अपने समय में, बहुत विषम परिस्थिति थी लेकिन फिर भी अपनी खुद के लाइफ में और बल्कि समाज में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए। Perfect. I think this is one of the burning issue of today, and you have really done a great service to women empowerment by taking up this theme and writing a book on that. Thank you so much. Thank you so much for doing that. And my next question is that in next 2 years or so, what should we expect from you?
In next 2 years, yes, I am planning to expand my writing skills. क्योंकि जब स्टार्ट किया था मैंने कोरोना के टाइम पे, उस समय तो बस ये था कि ये मेरा पैशन है, मुझे करना है, बचपन से ही मेरा सपना रहा है लेखिका बनने का, तो मुझे करना है। बट कहीं ना कहीं मैंने देखा कि लाइफ में बस मैं खो के रह गई अपने जीविका में। बट जो जीवन है यानी कि जो लेखनी है, वो कहीं ना कहीं दूर होता चला गया। तो अभी आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं अपने जीवन को यानी कि लेखन को ज्यादा प्राथमिकता दूं, अपने पैशन को परस्यू करूं। तो धीरे धीरे मेरा रुझान थोड़ा होता जा रहा है बाकी चीजों से कट ऑफ करके। बट बाकी चीजों से कट ऑफ करके मैं वापस से अपने राइटिंग स्किल्स पे जाना चाह रही हूँ कि अब मैं किताबें लिखूं फुल फ्लेजेड, जो मैं चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही लाइफ में। मैं बैंक में हूँ, अपने आप में बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक का, और परिवार भी है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेखनी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई थी जितनी वो डिजर्व करती है। बट अभी आगे आने वाले 2 सालों में मैं लेखनी को ही फुल फ्लेजेड इंपॉर्टेंस दूंगी। और आगे आने वाले समय में मैं खुद से भी उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशंस जो कि वाकई जो समाज के लिए अच्छे हों, जैसे देवी अभी हम लोगों ने जो पब्लिश की है वो इंग्लिश में पब्लिश की है, अभी उसके हिंदी अनुवाद पे भी काम चल रहा है, और जल्दी ही इसी साल हम लोग उसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। और देवी के आगे सीक्वल्स भी देखेंगे, क्योंकि इतिहास की बहुत सारी महिलाओं के बारे में हम लोगों ने जरूर लिखा, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में लिखना बाकी है। तो देवी के भी बहुत सारे सीक्वल्स आएंगे, देवी के भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। और जो मैंने रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग स्टार्ट किया है, उसमें भी बहुत सारे मुझे लाने हैं, बहुत सारे पार्ट्स लाने हैं जो कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ के बारे में और डीपली हमारे जो यंग जनरेशन है स्पेशली उनको बता सके। Okay, that's very good. And I think this aspect that you're talking for back on your writing is something which is very good. That will really be something which all of us would love, because that means that we will be able to read that many more things from you. So, Sanjay, do we have time for rapid fire? Just one question. One question. Okay. We will do 5 questions. Rapid fire. So, Ishika, as you know that as part of this show, we also have a rapid fire round, and I am sure that you are going to enjoy this round. So, you are a banker and you are an author. So, what is common thread between banker and author? What is the common thread? I think human emotions. Human emotion. But people say that bankers are very dry and commercial, and they don't show express any emotions. कमर्शियल कमर्शियल होते हैं, बट दे डील विद अ वेरी सेंसिटिव इशू, पैसे को लेकर के। जो भी कस्टमर्स Yes. आते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव उनके पैसे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो भी ह्यूमन इमोशन से डील कर रहे हैं। और राइटर भी ह्यूमन Perfect. इमोशन से डील कर रहे Perfect. हैं। So, since you are from Jaipur, my next question is why should one visit Jaipur? व्हाई शुड वन विजिट जयपुर? बिकॉज जयपुर इज अ कॉम्बिनेशन, एक ट्रेडिशनल शहर भी है, एक मॉडर्न शहर भी है, तो दोनों की ही झलक मिल जाएगी। Okay. To Ishika, parenting is. Complete the sentence. पेरेंटिंग इज अ ब्लिस। Parenting is a bliss. Perfect. The next question. Woman empowerment to you is. वुमेन एम्पावरमेंट टू मी इज रियलाइजिंग वंस ओन पोटेंशियल। Perfect. And the last question. Ishita in 2047 will be. इशिता इन 2047 विल बी अ बिलियनियर। Fantastic. Congratulations. So it was fantastic having you on the show. And I am sure that you will become billionaire. Okay, so that brings us to the end of the episode of the show presented by Kala in association with Let's Talk. The episode
was also recorded and will be shared on my YouTube channel, Sanjay Chandra 5376. Please do read Ishita's books and share your reviews. If you want to feature on the show, please connect with me on my email ID, sanjaychandra59@gmail.com. And watch out for the notification for the next episode of the show. Goodbye. Have a great Sunday evening. Namaste. No.